उसके बाद Definitely. मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, और ये जो बेसिक कंसेप्ट स्टेट राइट्स फ्रीडम लिबर्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल, वो हम आगे आगे जैसे जाएंगे करते जाएंगे। बट टू द टुडे, बिकॉज आज हमें थोड़ी टाइम का भी इशू आ गया था ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, आज हम करते हैं अपना फोकस मेन अपनी उस पे जो टॉपिक पे रहते हैं हमारे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि पॉलिटिकल साइंस कहते हैं किसको, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, व्हाई इट इज नीडेड टू read or even learn anything, why is it a subject in CSS, or a subject main one of the most important subject of social science. Political science is a term that is derived from the politics, and politics दरवाजा has बंद करो, some connection दरवाजा with बंद philosophy. But as far as political science is concerned, there are different definitions which are given by different political scientists. Like we have the definition of Stephen Leacock. He is also a renowned political philosopher, political scientist even. So there's a difference between political philosopher and political scientist. So the father of political science is Aristotle, but not he is the father of political philosophy. So these are different things. We'll also deliberate on these प्लीज things. सबको If म्यूट कर दे। any idea is driven through empirical evidences based on certain philosophical preconditions, then it turns out to be the science, which is called political science. But as far as we are concerned over here, we only have to see the definition and the main nitty-gritties of political science. ओके। सो किसी ने मैसेज भेजा था मुझे कि म्यूट करें सारे पार्टिसिपेंट को। आई हैव डन दैट। इन द एंड आप मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। इवन अभी भी जो क्वेश्चन आपको आए माइंड में, तो आप ये करें कि वो आप मुझे टेक्स्ट कर दें थ्रू द चैट। तो मैंने आई हैव म्यूटेड एवरीवन। नाउ वील गो थ्रू द डेफिनेशंस के व्हाट डज पॉलिटिकल साइंस एंटेल्स। Dr. Stephen Leacock said political science deals with government. ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सम वे or other comes in the comes in the jurisdiction or in the boundaries of political science. But this definition was not self-sufficient because there's a difference between government and state. Government is a temporary entity while the state is long lasting. जैसे आपने शायद सुना भी हो, if you have any exposure to political science at your graduation level or otherwise, कहते हैं कि long live the king is died, long live the king. ये हम यूज करते हैं phrase for the European, for the British political system. उसमें जो क्राउन होता है, क्राउन इज लाइक द नेम ऑफ ऑफिस, बट जो उनका किंग होता है या क्वीन होती है, दैट इज द ऑनर ऑफ ऑफिस। तो इसी तरह फर्क होता है गवर्नमेंट और स्टेट में कि गवर्नमेंट तो 5 साल की आती है के लिए आती है इन सर्टेन कंट्री लाइक दैट ऑफ पाकिस्तान इंडिया। कुछ कुछ कंट्रीज में 4 साल जैसे यूएस में, कुछ तो बड़ा मोनार्किक सिस्टम होता है। बट गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट इज अ सर्टेन एंटिटी विच इज long lasting. It has certain pillars as well. So ये definition, this definition was challenged by other philosophers. Dr. Stephen Leacock की ये definition challenge हुई थी। Then G.W. Garner gave another definition. And Garner said कि ये तो हो नहीं सकता कि political science is only limited to government. उन्होंने कहा political science is a more broad concept. Then he says that political science is something that begins and ends with the state. तो उन्होंने अपनी एक और डेफिनेशन दी, जो भी काम स्टेट के स्टेट के जुमरे में आता है
उसको पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा मान लिया जा सकता है। एवरीथिंग दैट इज अंडरगोन in the jurisdiction or in the boundaries of a state is called the political science, is under the garb of political science. तो ये डेफिनेशन है मेनली। कुछ और भी डेफिनेशंस हैं पॉल जेनेट की, बट वो मैंने डेलिबरेटली ऐड नहीं की बिकॉज आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू। ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछ सकता पेपर में कि आप डेफिनेशन बताओ पॉलिटिकल साइंस, बट यू शुड बी हैविंग सम आइडिया इफ यू आर हैविंग द मेन सब्जेक्ट। और इंटरव्यू में डेफिनेटली वो पूछेंगे। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इनसे निकलती है वो ये कि ये चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, उसमें एमसीक्यूज में पूछ ले कि वो कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द गवर्नमेंट, ये किसने दी थी डेफिनेशन। फिर आपको पता होना चाहिए कि डी GW गार्नर। इसी तरह वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, तो ये किसने दी थी ये। फिर आप कहेंगे, वहां पर जाहिर ऑप्शंस होंगे, आप कहेंगे कि ये GW गार्नर ने, और पहली वाली लीकॉफ ने दी। इसी तरह एक पॉल जेनेट की डेफिनेशन, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप चाहे टाइम मिले या इंटरेस्ट हो तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं देखते तो भी कोई इशू नहीं। वो ये था कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने इसको जरा दोनों को कंप्रोमाइज कर दिया। he actually gave definition which was somewhat similar to the GW Garner. उन्होंने the words थे वो डिफरेंट किए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, और ये कोई मतलब गार्नर भी यही कहता है अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें कि पॉलिटिकल साइंस एंड्स विद स्टेट एंड बिगिंस विद स्टेट। गवर्नमेंट itself is a part of a state। जब ये गार्नर के साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, तो उसमें गवर्नमेंट आ जाता। तो ये GW गार्नर जरा कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक। चलें, दिस वाज ऑल पॉलिटिकल साइंस। अब हम और आगे बढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता भी है, प्लेटो। सबसे सोक्रेट्स के बाद सबसे पॉलिटिकल साइंस का ओल्डर, और द वन हु गिव वेरी comprehensive sort of philosophy, the basis on which other actually created their own structures, was Plato। जी, किन्होंने कहा है कि स्लाइड्स को जूम कर लें, मैंने कर दिए जूम। तो प्लेटो इज लाइक द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ नहीं कहते इसको, वो फादर कहते हैं एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल हिमसेल्फ वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। फिर भी एरिस्टोटल को क्यों फादर कहते हैं और प्लेटो को नहीं कहते, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एरिस्टोटल इनको और प्लेटो को कंपेयर करेंगे। अब प्लेटो एक ने आइडियल स्टेट दी, देयर वर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फिलोसफी दी। इनके जो टीचर थे, मेंटोर थे, सोक्रेटिस, उनको हेमलॉक ला के उनको मार दिया गया था। he was given he poisoned because he stood against the certain norms of that period in the Greek city states। एक तो ये मेन रीजन था which instigated Plato to give his philosophy। एक दूसरा भी मेन रीजन था, वो था द वॉर बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस। उस वार को कहते हैं पेलोपोनेसियन वार। वो हम करेंगे आगे, उसका आई थिंक थोड़ा सा हम देंगे, वो आता नहीं क्वेश्चन, बट यू शुड बी हैविंग सम आइडिया अबाउट दैट कि वो वार क्या थी। अब ब्रीफ लाइफ स्केच आपने पेपर में नहीं लिखना होता, ना ही कभी पूछा होता है उसने। इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं, बट उसका अगर आप ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ेंगे ना, तो पेपर में एक आप सब हेडिंग दे सकते हैं जो बड़ी अच्छी भी लगती है, रीजंस फॉर गिविंग ideal concept of ideal state or republic or communism by Plato।
तो आप उसमें जब आपको उनका ब्रीफ बैकग्राउंड पता होगा ना, जैसे मैकेवली का मसला है, मैकेवली ने प्रिंस क्यों लिखा, जो उसका एपिक बुक है। प्रिंस एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें वो एक रूलर को बताता है कि किस तरह रूल किया जाए। वो बड़ा रियलिज्म की बेसिस असर उधर से शुरू हुई। तो वो लिखना जरूरी होता है कि उसने क्यों लिखा ये अपना बुक, या उसने ये फिलोसफी क्यों दी। तो जब आप ब्रीफ लाइफ स्टेज देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये 400 बीसी में प्लेटो ने जन्म लिया, सिटी ग्रीक सिटी स्टेट में, और he was the student of Socrates, and when Socrates was poisoned, he gone and migrated somewhere else. Then he opened his own academy, और उसको क्या किया, उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में सारी चीजें लिखी हैं प्लेटो की। अब ब्रीफ लाइफ स्केच तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। जब आप पेपर के नजदीक आए तो आपने और थोड़ा सा, मैं आपको बुक दूंगा, वहां से एक आधे पेज में लिखा होता है, वहां से सारे एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं आपके, और पूरा बैकग्राउंड मिल जाता है ब्रीफली, बड़ा क्रिस्प अंदाज में वो लिखा होता है। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में ही कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये मेजर एरिया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, विच यू शुड अंडरस्टैंड कि मेजर एरियाज कौन से हैं इस फिलोसोफर को लेकर। मकसद इन अदर वर्ड्स कि प्लेटो पे किन किन टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्लेटो पे कौन सी चीजें तैयार करनी चाहिए हमें। अब ये 4-5 ही पंक्ति है इसकी डायमेंशन। प्लेटो पे पिछले 30 साल में, 30 इयर्स में कभी भी इसके बाहर से सवाल नहीं आया, और नहीं आएगा ना, इंशाल्लाह आएगा अगले 30 साल में, क्योंकि और बनता ही नहीं। अदर देन के जो एग्जामिनर है उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाए। बट अगर कोई डायमेंशन बने भी ना, उस पे एक 8-10 पेजेस का आंसर लिखना, इस लेवल की डायमेंशन और नहीं जो दे दे पेपर में, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका पेपर बाहर नहीं आएगा। और अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखें ना, तो कोई 4-5 साल प्लेटो पे क्वेश्चन आता होता है। तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो जो भी हम करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके जो मेजर एरियाज हैं वो है प्लेटोनिक आइडियल स्टेट। प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया आइडियल स्टेट का, कि एक स्टेट होनी चाहिए। ही एक्चुअली रेबल्ड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिटी स्टेट्स इन ग्रीक वर्ल्ड एट दैट टाइम। उन्होंने कहा दिस इज एक्चुअली द एक्सपल्जन एंड, ये तो आप मतलब हुकूक को आप पामाल कर रहे हैं, अवाम के ट्रेमाटाइज कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं। वो उसके ऊपर उसने अपनी आइडियल स्टेट दी कि किस तरह की स्टेट होनी चाहिए, वो हम पढ़ते हैं। फिर प्लेटो ने अपना एजुकेशन सिस्टम दिया। ही रिगार्डेड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग for the betterment of a state, and education for both sexes, women and men. फिर इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी कि इंसाफ इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशल फॉर द वे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल स्टेबिलिटी। फिर प्लेटो ने अपने उसमें आइडियल स्टेट में एक कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। दिस कम्युनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, बट ही गेव दैट कॉन्सेप्ट। वो भी हम पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है प्लेटोनिक कम्युनिज्म पढ़ने में, और ये एक बार पढ़ने से याद भी हो जाता है। और व्हेन अ पर्सन डेलिब्रेट ऑन इट, तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि किस तरह की सोच थी प्लेटो। फिर एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये भी काफी बार आया है, और ये इम्पोर्टेंट भी है टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ, एंड why the student rose to become the father of political science and teacher was put behind. और वैसे भी अगर कंपैरिजन नहीं भी पूछा होता ना, यू कैन गिव द कंपैरिजन टू सम एक्सटेंट इन क्रिटिकल एनालिसिस, या आप इंट्रोडक्शन की इवन फर्स्ट सेंटेंस को इस तरह शुरू कर सकते हैं कि इट लुक लाइक कंपैरिजन।
आप जैसे एरिस्टोटल पे क्वेश्चन आ जाए ना, एरिस्टोटल टोटल के स्टेट पे, तो आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में, अनलाइक प्लेटोनियन आइडियल स्टेट, Aristotle gave a concept that was not utopian, even though the state was not the best, but it was good and practical. तो ये आपने कंपैरिजन दिया विदाउट इवन इट वाज आस्क्ड। ठीक है, तो हम इनको इंडिविजुअली करते हैं कि इनसे क्या मुराद है। जी, किन्होंने क्वेश्चन किया है कि फिलोसफी ओवरलैप करती है पॉलिटिकल साइंस से। क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ मैं इन पे, बिल्कुल करती है, और कैसे करती है वो मैं बताता हूँ आपको। अब प्लेटोनिक आइडियल स्टेट क्या चीज है, हम उसको करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। प्लेटो वाज एक्चुअली अगेंस्ट द kind of a state that used to exist in Greek city state. He said it curtailed the rights of people, therefore there should be some ideal state. He gave that concept in his book Republic. प्लेटो ने दो बड़े तीन बुक्स लिखे, उनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आते हैं क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी आते हैं, क्वेश्चन भी। एक लिखा रिपब्लिक, जिसपे रिपब्लिक पे तो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। एक आता है लॉज, द लॉज, प्लेटो के लॉज। तो वो उन पे भी कंपैरिजन पूछ देता है कि हाउ प्लेटो वेंट अगेंस्ट हिज ओन फिलोसफी इन द लॉज दैट ही गेव इन द रिपब्लिक। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं प्लेटोनिक आइडियल स्टेट का। अब मैं पहले बेसिस बता दूं थोड़े, कि ही वाज अगेंस्ट द ग्रीक सिटी स्टेट, जो एक मोनार्किक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें कोई भी कॉमन पीपल के कोई राइट्स नहीं थे। द रूलर रूलर वर टोटली इंडिपेंडेंट, और they were not accountable to the people. Then he gave his concept of the ideal state, Platonic ideal state. अब उसके मेजर क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जब हम ये पूरे पढ़ेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो के क्या थी। उसने कहा कि रूल ऑफ फिलोसफी होनी चाहिए। अब प्लेटो फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ फिलोसोफर, फिलोसोफर रूलर। अब फिलोसोफर रूलर से क्या मुराद, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, एंड हिज टीचर सोक्रेटिस वाज आल्सो अ मेजर फिलोसोफर। वो जिनको उस टाइम के जो मॉडर्न स्टेट्स थे वो बिल्कुल नापसंद, तो वो कहते थे फिलोसोफर रूलर कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल लाइक अ फिजिशियन कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द मेडिसिन दैट ही। तो इस तरह की बातें करते थे। तो उसने कहा कि फिलोसोफर रूलर का रूल होना चाहिए, जो भी रूलर हो इस स्टेट का वो फिलोसोफर हो हिमसेल्फ, ही शुड हैव फुल आइडिया, फुल कमांड ऑन द फिलोसफी। तो उसने कहा फिर उसको ही राइट है रूल करने का। देन ही गिव नो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म। इसमें अब प्लेटो के थ्योरीज में थोड़े से मतलब आप समझ लें कि कंट्रोवर्सीज हैं। इवन एट सर्टेन पॉइंट वो अपनी बात को कंट्रास्ट कर देता था। जैसे उसने लॉज में रिपब्लिक अपने बुक को थोड़ा डिफर किया था। अब इसने कहा कि फिलोसोफर रूलर तो हो, वो अकाउंटेबल भी ना हो, बट वो भी उसको अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म नहीं होगा, मतलब ही वुड नॉट बी all given all takes to make decision. He would have to regard something, some philosophical thing basis before decision making. ये नहीं कि फिलोसोफर रूलर का अगर दिल करे तो सारे ही अपने जो लोग हों उनको कत्ल करवा दे। तो ये टर्म यूज होता है टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट is considered as the most powerful लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड, बट उसमें एक मैन है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि like the parliament, no, nothing can go against the law which has been created by parliament, but that doesn't mean if parliament pass the a law that all blue eyes babies should be killed and those should be killed. The legislature should go made before doing that.
तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल इलॉजिकल डिसीजन करेंगे, इवन दो दे आर नॉट वेरी मच अकाउंटेबल, दे आर गिवन फुल पावर्स। तो इस तरह की उसने प्लेटो ने बार भी रखी हुई थी अपने फिलोसोफर रूलर पे। फिर उसने कहा कि रूलर कंट्रोल और सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये कहता है, वो हम एजुकेशन के क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एजुकेशन प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, तालीम हमेशा स्टेट स्पॉन्सर करे, और तालीम का जो सिलेबस है वो भी पूरा स्टेट क्रिएटेड हो और स्टेट फॉर्मुलेटेड हो, विच सपोर्ट द बेसिस ऑफ स्टेट एंड विच लाइक वी हैव इन अवर वर्ल्ड, के कंट्रीज अपनी हिस्ट्री को, अपने जो भी उनके सक्सेसेस हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी जो सक्सेसेस हैं उनको वो अपोजिट दिखाते हैं। तो प्लेटो का भी यही कहना था कि स्टेट कंट्रोल करे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, फिर जो भी माइंडसेट वो बनाना चाहे अमंग द स्टूडेंट वो बना सकती है। जी जनाब। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस इन आइडियल स्टेट। अब उन्होंने जस्टिस पे बड़ा, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने भी काम किया है। एरिस्टोटल का भी जस्टिस हम पढ़ेंगे। वो एरिस्टोटल कहता था कि गिविंग एवरी मैन के जस्ट एवरीबॉडी शुड, गुड शुड बी ट्रीटेड लाइक गुड एंड बेड शुड बी ट्रीटेड लाइक बेड, ये एरिस्टोटल कहता था। अब इन्होंने भी थ्री जो प्लेटो ने बड़ा डेलिब्रेट किया जस्टिस के ऊपर। प्लेटो का की जो प्रैक्टिस होती थी वो ये होता था कि he used to ask question from his students कि किस तरह से जस्टिस होना चाहिए। तो उनकी थ्री डेफिनेशन बाय डिंट ऑफ दिस आ गई। फिर उनमें से एक ही एप्लीकेबल होती है, वो हम सारी पढ़ते हैं, जस्टिस का एक अलग से क्वेश्चन। तो अगर हम सरसरी लिहाज से देखें ना, तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। तो वो कहता है कि स्टेट में इंसाफ होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट जस्टिस नो स्टेट कैन फ्लोरिश। उसके बाद सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। दूसरी जो बड़ी बात की प्लेटो ने कि आर्ट एंड लिटरेचर पे भी सेंसरशिप होनी चाहिए, फुल लिबर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गाब में आजकल जो लोग होते हैं, वो राइट तो है बिल्कुल, बट वो एंटी स्टेट, एंटी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बातें कर जाते हैं। तो प्लेटो वाज अगेंस्ट दिस, वो जरा कंजर्वेटिव थे इन दिस रिगार्ड। तो वो कहता था फ्रीडम नहीं होना चाहिए लिटरेचर पे और आर्ट पे। ये नहीं है कि हर कोई उठे और अपनी बात कह दे, लिटरेचर में कुछ लिख दे, कोई शेर बना दे अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ स्टेट। इस तरह वो उसको, उसके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू थ्री क्लासेस। प्लेटो ने स्टेट को डिवाइड किया इनटू थ्री क्लासेस। उसमें जो फिलोसोफर रूलर का एक क्लास था, एक थे गार्डियंस, और एक थे हमारे जो वर्किंग क्लास। ही डिवाइडेड इनटू थ्री, एक सोल्जर्स, एक गार्डियन, एक वर्किंग क्लास। फिर उनमें सर्टेन कंडीशन है, उन्होंने कहा कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जिसकी बुनियाद पे तय किया जाए कि कौन सा बंदा किस क्लास में फॉल करता है। then he should be delegated those responsibility and perks and privileges only. तो इन्होंने कहा जिसको जरा थर्स्ट हो फॉर द आर्ट, फॉर द लर्निंग और फॉर द फिलोसफिकल थिंग, उसको हम करते हैं, उसमें कर देते हैं जो है गार्डियनशिप के क्लास में। जिसको जरा स्ट्रांग नर्व्स हो, स्ट्रांग बॉडी हो और खाने पीने का शौक हो, और उसको कर देते हैं सोल्जर्स, विच शुड होल्ड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एज अ प्रेसिडेंट। फिर एक वर्किंग क्लास है। फिर सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म इन आइडियल स्टेट, वो हम पढ़ते हैं कि कैसे वो सिस्टम आएगा। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि both men and women should be, both men and women are treated equally in ideal state। तो प्लेटो की और एक और भी थी थ्योरी की, also proponent of certain rights of women, कि उन्होंने कहा कि वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। वो इसलिए नहीं कि वुमेन काफी पसंद थी उसको, वो इसलिए कि ही वांटेड के, because he was cognizant of the fact that women constitute almost 55% of
population. And if you put them aside, that means you throw away the 50% potential as a working class of that state. And in the given situation, the state would not succeed. That's why he has a certain very very meaningful आइडियोलॉजी बिहाइंड इट कि स्टेट तो हम स्टेट में वुमेन का किरदार होना चाहिए बिकॉज विदाउट दैट वुमेन कैन नॉट द स्टेट कैन नॉट ग्रो कैन नॉट प्रॉस्पर तो ये था उसके बिहाइंड पर्पस उसके लिए ही एक्चुअली propagated or even supported that women should be given proper education and they should be treated equally in ideal state. ठीक है ये प्लेटो की आइडियल स्टेट का हमने थोड़ा सा सरसरी लिहाज से देख लिया इस पे पूरा क्वेश्चन आता है यही आपकी इसमें पहले आप इंट्रो देंगे उसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए इस पे कि कैसे आइडियल स्टेट क्या होती है और कैसे प्लेटो ने ये आइडियल स्टेट दी जो मैंने अभी बताया फिर आप मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे अब इसके ऊपर अगर वो क्रिटिसिज्म पूछ लेता है तो वो हम आगे करते हैं वो भी आप दे सकते हैं और अगर नहीं भी पूछता ना तो जिसकी स्पीड अच्छी है लिखने में उसकी राइटिंग पावर है तो वो सरसरी बड़ा ब्रीफ प्रिसाइजली क्रिटिसाइज कर सकता है तो वो उसकी उस वजह से भी उसको 1 or 2 मार्क्स एडिशनल मिल सकती हैं चलें जी आगे चलते हैं अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन चले मैं ये आपको करता हूँ वेट अ सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं अब ये इकरा है कोई इन्होंने क्वेश्चन किया है कि डिटेल्स नोट मिलेंगे इनमें अब ये मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ पहले तो जूड हर्मन की बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर वो आप एक एटलीस्ट आप 2 बार पढ़ें जो भी फिलोसफर मैं करवा रहा हूँ वही सिर्फ उसके बाद एक नोट्स में आपसे शेयर करूंगा फिर वो आप वहां से आपको ये हेडिंग ये चीजें ना मतलब डिटेल फॉर्म में मिल जाएंगी सर्टन वे में अदरवाइज जूड हर्मन तो लाइक ही इज अ प्लेटो हिमसेल्फ उन्होंने जिस तरह बुक लिखा है ना तो सीएस का पेपर नहीं वहां से अपलोड होता वहां से आपको फिलोसफी पता चलती है फिर उनको क्योंकि हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सीएस में आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है इसलिए आपको एडिशनल एक रेफरेंस बुक चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा अब ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लेटो ने एजुकेशन पे भी काफी काम किया प्लेटो सेड में उसकी एक एग्जैक्ट कोटेशन मुझे याद आ रही है मैंने आई थिंक पेपर में भी लिखी है कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशनल ट्रेनिंग तो जो भी इनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी इट डिपेंड्स अपॉन इट डिसाइड द वेलफेयर ऑफ स्टेट अब उन्होंने 2 टाइप्स की मतलब 2 एस्पेक्ट्स बताए एजुकेशन के एक इंडिविजुअल दूसरा सोशल इंडिविजुअल एस्पेक्ट रियलाइज द नॉलेज एंड virtue एंड सोशल प्रोसेस दैट इंस्टिल सोशल कॉन्शियसनेस तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी में भी सोशल कॉन्शियसनेस तभी आएगी जब आप एजुकेशन को प्रोपोगेट करेंगे सो ही मेड एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन अल्टीमेट फंक्शन ये इन्होंने एक और बात की कि अल्टीमेट फंक्शन ऑफ स्टेट इज पेडागोगिक पेडागोगिक इज अ साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ लर्निंग ठीक है अब प्लेटो ने अपना एक सिलेबस भी बताया था वो मैं एक टेबल फॉर्म में आपसे शेयर भी कर दूंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने कहा कि एक बच्चे को किस तरह
जी, अब मैंने जूम कर दिए। एक बच्चे को सो प्लेटो ने एक सिलेबस बताया, वो मैं अभी वर्बली बता देता हूँ आपको, फिर मैं वो आपको ना टेबल फॉर्म में कर दूंगा शेयर। उसने कहा बच्चे को 3 to 6 ईयर, जब 3 साल से 6 साल तक बच्चा हो, तो ही शुड बी टॉट मैथोडोलॉजिकल स्टोरीज। तो जो एक इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं वही पढ़ाई जाए उनको। वैसे हमें तो नहीं पढ़ाई गई थी, आई थिंक मे भी शायद आपको पढ़ाई गई हो। तो प्लेटो की पूरे एजुकेशनल करिकुलम को हमने तो नहीं फॉलो किया, इसलिए प्लेटो बन भी नहीं सकता। आप शायद बन लें। तो फिर 7 to 18 ईयर की जब आपकी एज हो, फिर आप फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग दें उनको। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मतलब एक ब्रेन को एम्पावर करने के लिए आपने इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन देनी है। फिर फिजिकल भी बड़ा कंपलसरी कहा हुआ है प्लेटो ने। 7 to 18 ईयर की एज में आपने ये पढ़ाना है। फिर 18 to 20 में आपने देनी है एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग इन जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री। इन्होंने रखा था कि हर सिटीजन, जैसे अभी भी कुछ कंट्रीज में है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री वो 2 साल की, 18 to 12। फिर 18 to 20, सॉरी, फिर 20 to 30 ईयर जब एज हो, फिर बच्चा तो नहीं रहता, जब यंग हो जाए, फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस काफी फोकस रहा प्लेटो का। फिर जो ये इन सर्टेन फेसेस में मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होती थी, लाइक एमपीटी, प्लेटो के अकॉर्डिंग, जो कि डिसाइड करेंगी कि किसी को आगे पढ़ने के लिए रखा जाए, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, या उसको काफी हो गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट। फिर ये 20 to 30 ईयर जब साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, तब उनसे एक टेस्ट ली जाए, जिससे पता चले कि वेदर ही या शी इज एबल टू बी गिवन फर्दर एजुकेशन। फिर 5 साल की, इफ ही या शी इज एबल, फिर 5 साल की और भी उनको एजुकेशन दी जाए डायलेक्ट्स एंड एथिक्स की। वो जो 35 साल एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, दे विल बी रिगार्डेड इनटू द फर्स्ट क्लास, जो गार्डियंस होंगे, जो रूलर्स होंगे। और वो सिर्फ एज ए मैनेजर, एज ए स्टेट रूलर होंगे। बाकी जो होंगे सोल्जर्स होंगे और दूसरे वर्किंग क्लास। अब इसके जो फीचर्स हैं कि प्लेटो ने, अब ये जो मैंने हेडिंग्स निकाली हैं, ये कहीं किसी बुक से नहीं मिलती, इवन नॉट फ्रॉम द जुड हामन। ये जुड हामन से थोड़ा सा मिल जाती हैं, बट इफ यू रीड वेरी इंटेंसली और एक लफ्ज लफ्ज के ऊपर आप फोकस करें, अदरवाइज ये। अब इन्होंने कहा कि बेनिफिट्स, तो उन्होंने कहा बैलेंस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन फैसिलिटी, एजुकेशनल करिकुलम, वो जो मैंने अभी बताया आपको। स्टेट कंट्रोल एजुकेशन, मैंने बताया पहले भी कि एजुकेशन पे कंट्रोल स्टेट ही करे। फिर एजुकेशन फॉर बोथ सेक्सेस, वो वो भी बताया मैंने आपको। एजुकेशन मीन फॉर ऑल क्लासेस, जो 3 क्लासेस मैंने बताए, उन सबको ही एजुकेशन दी जाए टू सर्टेन एक्सटेंट। आइडियल स्टेट जो प्लेटो ने बताई, वो प्रोडक्ट होगा एजुकेशन का, ठीक, बिकॉज विदाउट द प्लेटोनियन कम्युनिज्म, which is not possible without Platonian education system, ideal state cannot occur. Whether ideal state itself or the utopian concept, Plato realized himself in the laws that ideal state cannot be practiced anywhere in the world. But जो according to his imaginary theory, ideal state was a product of education. ठीक है, ये एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आता है। अब इसको आप कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को, इंट्रो देंगे, कंक्लूजन देंगे, क्रिटिकल एनालिसिस देंगे, बाकी फिलोसोफर से कनेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस तरह दूसरे ने इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी एजुकेशन को एज द गिवन बाय प्लेटो। तो इस तरह आपका क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन लेंदी होना चाहिए सर्टन, इसमें पॉलिटिकल साइंस में, और उसमें काफी डायमेंशन कवर की होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम।
ये प्लेटोनियन जस्टिस और प्लेटोनियन, ये स्लाइड में कुछ इशू आ गया है आई थिंक। ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, वो स्लाइड्स भी शेयर कर देते हैं। अब ये प्लेटो ने कम्युनिज्म दिया, दिस कम्युनिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, दिस कम्युनिज्म मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली, फिर इसको करेंगे हम। फ्रॉम द कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक आर्ट ऑफ कम्युनिज्म, ये कोई यहाँ पर इकोनॉमिक आर्ट नहीं था। अब यहाँ पर जो प्लेटोनियन कम्युनिज्म था वो दो किस्म का था, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म प्रॉपर्टी। अब जो जिस जो 35 साल पढ़ेंगे, डायलेक्ट्स और एथिक्स और सारी टेस्ट कंप्लीट भी कर लेंगे, प्लेटो ने बड़ा इंजस्टिस किया उसके साथ, उनके साथ। वो वैसे रूल तो करेंगे कंट्री के ऊपर या स्टेट के ऊपर, बट उनके ना तो वो शादी कर पाएंगे, उनके कोई फीमेल अपोजिट जेंडर के साथ कनेक्शन नहीं होंगे, विच वाज वेरी सेड। और दूसरा ये कि उनको कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते, उनके सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेट मीट करेगी। उनकी ना कोई फैमिली होगी, ना कोई उनकी प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो दीज थिंग विल मेक हिम करप्ट। ही गेव सर्टेन रीजन के जो रूलर्स होते हैं वो करप्शन क्यों करते हैं, बिकॉज दे fall into the love of their wives, they become guilty or greedy for property, और उसको बचाने के लिए फिर भी करप्शन करनी पड़ती है इन टू एक्सटेंड इट। तो प्लेटो ने कम्युनिज्म दिया, कम्युनिज्म फॉर अपर क्लास, फॉर द गार्डियन क्लास ओनली, कि वो ये दो चीजें नहीं रख सकते जो उनके गार्डियन थे। तो ये भी, इस पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म आता है। यही उनका फायदा ये होगा मेमून साहब के, वो कंट्री के ऊपर या स्टेट के ऊपर रूल करेंगे। और का फायदा हमेशा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट का, ना कि उनका पर्सनल। ठीक है ना? तो ये बड़ा इंजस्टिस था, और ये पॉसिबल भी नहीं था। प्लेटो हिमसेल्फ रियलाइज्ड कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को आप ना शादी करने दो, ना कोई प्रॉपर्टी हो, सारा दिन ऑफिस में दिन रात रहते रहें और काम करते रहें। ये तो अगेन curtailing the rights of those people in the garb of supporting or protecting rights of many more. It would be tantamount to curtailing rights of guardian class. तो ये philosophy itself was an utopian concept which could not exist. Plato realized to some extent, and Aristotle himself did some of criticism upon it. But as a theory, as a philosophy, it was a wonderful thing, because thinking this like 4,000 year back, 4,000 year back was definitely a feat. तो बिल्कुल प्लेटो के आगे स्टेट ही थी, बाकी उसके कोई पर्सनल या जो होते हैं वो कोई उनकी इम्पोर्टेंस नहीं। अब प्लेटो का कम्युनिज्म हमने पढ़ लिया। प्लेटो के जस्टिस की थ्योरी, प्लेटो गेव अ जस्टिस। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरी दैट कम, theory of CSS MARKAZ, theory of black hole, and there was third is। अब उनमें से क्या था वो मैं आपको बताता हूँ पूरा। जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जी, थ्योरी ऑफ सेफेलस थी थर्ड। सबसे पहले ये थी थ्योरी ऑफ सेफेलस, उसको ट्रेडिशनलिज्म भी कहते हैं। जी जी, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं क्योंकि टाइम भी जा रहा है हमारा। थ्योरी ऑफ सेफेलस ट्रेडिशनलिज्म, प्लेटो ने सेफेलस से पूछा कि जस्टिस क्या है अकॉर्डिंग टू। तो ही सेड कि गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू इज अ जस्टिस। अब उन्होंने कहा कि जो भी जिस का राइट बनता है उसको ये देना वाज अ जस्टिस।
अब प्लेटो ने इसको भी रिजेक्ट किया शुरू में, इस थ्योरी को, कि ये कैसे हो सकता है। इफ somebody hit a bullet to you and then he is due to be hit the same bullet, मतलब आपको किसी ने गोली मारी, तो ये जरूरी है कि उसको भी गोली मारी जाए। ये उसने कहा ये जस्टिस नहीं हो सकता, बिकॉज ये नेगेटिव टर्म्स में भी कन्वर्ट, इसकी कोनोटेशन हो सकती है। तो प्लेटो ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये मैं स्लाइड्स आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, 2 स्लाइड्स मिस हो रही हैं हमारी ड्यू टू पीडीएफ, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लगा शुरू में। और दूसरी थी थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकस, उसको रेडिकलिज्म भी कहते हैं। ये जरा थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ थ्योरी थी। इन्होंने कहा कि जस्टिस इज माइट इज राइट, इसकी इसकी लाठी उसकी भैंस, दिस इज जस्टिस। प्लेटो अगेन रिजेक्टेड थ्योरी, दिस थ्योरी, कि ये नहीं हो सकता। फिर तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट और पूरे गवर्नमेंट और स्ट्रक्चर का फायदा ही नहीं। फिर तो जो नेचुरल कंपोजिशन ऑफ स्टेट है वही रहे, स्टेट ऑफ नेचर जिसको होप्स कहते हैं। प्लेटो रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकस। फिर होता है थ्योरी ऑफ ग्लाइकोन प्रैग्मेटिज्म। ये थर्ड थ्योरी प्रैग्मेटिज्म की, ग्लाइकोन ने दी थी। इन्होंने कहा कि जस्टिस समवॉट, justice is somewhat related to the इखलाकियात। तो and इखलाकियात and it is a wider term, जिसमें आप फंडामेंटल प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स किसी के कंप्लाई करें। तो ये थ्योरी उन्होंने फिर मानी प्लेटो ने। तो दीज वर द 3 theories of justice that that Plato gave. अब because we have 5 minutes left, अब आप कोई भी क्वेश्चन करें तो मुझे टेक्स्ट कर दें, आप या हैंड रेज करें, फिर हम एड्रेस करते हैं। ये आज का प्लेटो हमने किया। प्लेटो में अब एक डायमेंशन रह जाती है, जो कि कंपैरिजन बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो। इनके मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, फिर आप इनके ऊपर थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक कवर हो जाएगा। प्लेटो इज वेरी वेरी मच डिटेल्ड थिंग इन पॉलिटिकल साइंस, और सबसे ज्यादा बेसिस और फाउंडेशन इसकी होती है, प्लेटो की। अब जो भी क्वेश्चन है आप मुझे चैट में भेज सकते हैं। ये इन्होंने नीलम सैर ने क्वेश्चन भेजा है कि मॉडर्न प्लेटो गेव मॉडर्न आइडिया ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, मैंने जैसे कहा अभी, एजुकेशन सिस्टम को लेकर प्लेटो ने काफी डिटेल्ड स्टडी की। बट उसमें मॉडर्न से ये डिफरेंट है कि फिजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा प्लेटो करता था, और सब्जेक्ट्स भी जरा लिमिटेड थे, जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड एथिक्स। आजकल तो हर किस्म के सब्जेक्ट है ना, हर किस्म के सब्जेक्ट पे पीएचडी होती है। बट एट दैट टाइम इट वाज वंडरफुल थिंग टू इवन थिंक ऑफ। अब ये इन्होंने क्वेश्चन किया है सना ने कि किस तरह अटेम्प्ट करें आंसर को अच्छी तरह। ये पहले लेक्चर में मैंने किया था इसको, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जनरलाइज्ड क्वेश्चन होता है, जनरलाइज इन सेंस के मतलब पेपर 1 में तो फैक्चुअल चीज, जो फिलोसफी है प्लेटो की वो 4-5 साल पहले दी गई है, अब कोई वो चेंज नहीं होती, उसमें आप करंट अफेयर वगैरह नहीं डाल सकते। जब सर्टन 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 टाइम्स वो पूछा होता है कि करंट हिसाब से इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या एप्लीकेशन है प्लेटो की, फिर आप दे सकते हो। तो अच्छी तरह ये पूरा इस पे ना डिबेट चली जाएगी। अगर मैं ब्रीफली 1-2 सेंटेंस में अगर इसको आंसर करूं, तो ये हो सकता है कि आप कंपैरिजन करो डिफरेंट क्लासेस को, और ज्यादा उसके रेफरेंसेस दो। रेफरेंसेस भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूं, जैसे प्लेटो की 8-10 कोटेशन वार इन 4-5 क्वेश्चन जो भी प्लेटो पे बनते हैं वो उनमें यूज कर सकते हो, और इस तरह हो सकता है।
लेंथ, अब ये इन्होंने क्वेश्चन किया है कि लेंथ क्या होनी चाहिए। लेंथ एटलीस्ट 8 पेजेस तो होनी चाहिए। 8 पेजेस मतलब 4 सफ़े हमारे जो होते हैं, जैसे पेजेस बुक में लिखे होते हैं इस तरह 8 पेजेस। एटलीस्ट मैं तो कोई 10-11 पेजेस 12 तक भी चला जाता था, बट 8 पेजेस पे भी आप अच्छा 150 तक इसको कर सकते हैं। जी, ये इन्होंने कहा है कि जस्टिस को दोबारा करें। जस्टिस की 3 थ्योरी थी जो प्लेटो ने दी, जिस तरह मैंने बताया। थ्योरी ऑफ सेफेलस ट्रेडिशनलिज्म, उसमें प्लेटो ने पूछा कि क्या है वो। नहीं, 2 साइड नहीं, 4 साइड 8 पेज। 8 मतलब 4 पेजेस 8 साइड्स, ये होनी चाहिए मिनिमम जो है, एटलीस्ट। मैंने ये सना मैंने ग्रुप में अपने आंसर्स कुछ शेयर किए हैं, फिर दोबारा कर दूंगा अगर आप बाद में ऐड हुई हैं तो फिर पता चल जाएगा। तो जस्टिस को कर रहे थे हम। 3 थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सेफेलस, थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकस, थ्योरी ग्लाइकोन। सेफेलस ने कहा कि जस्टिस गिविंग मैन एवरी मैन हिज ड्यू, जो भी जिसका बनता है उसको देना जस्टिस है। तो प्लेटो ने इसको रिजेक्ट किया कि ये नेगेटिव मीनिंग्स में भी इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, कि किसी ने अगर आपको गोली मारी तो उसको तो ये बनता है कि आप भी मारो गोली, बट ऐसा करना जस्टिस नहीं। फिर दूसरी थ्रेसी मार्क मेकर्स की, कि माइट इज राइट। तो ये भी रिजेक्ट की प्लेटो ने, कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप माइट इज राइट कर दो। इस तरह तो फिर स्टेट का होना जरूरी, होने का फायदा ही नहीं, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस भैंस। तो फिर तो स्टेट ऑफ नेचर ही ठीक है, फिर फिलोसफी क्यों लिखी जाए। फिर दी थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ग्लाइकोन। इट वाज सर्टेन, उसमें ये कहा कि जस्टिस वो है जिसमें मोरालिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें हर एंगल से मोरालिटी को देखा जाए, वो असल में जस्टिस है। और जस्टिस वाइडर टर्म है, जिसको आप डिफरेंट वे में, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बाय कीपिंग इन व्यू द एप्लीकेशन ऑफ मोरालिटी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं, रेफरेंसेस हैं सना, उनमें मैं फिर से कर देता हूँ। रेफरेंसेस के सिवा तो नहीं हो सकता ना कोई भी आंसर। ओके, मैं कर दूंगा जो है ना, अटेम्प्टेड पेपर मैं दोबारा कर दूंगा। अब ये इन्होंने एक ऊपर क्वेश्चन किस ने किया था कि प्लेटोज स्टेटमेंट, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लॉज। तो ये लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ हेगल। हेगल ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट इज एंड इन इटसेल्फ। हर चीज वुड बी अकॉर्डिंग टू द benefit or according to the interest of state, at the loss of any other factor, even the individuals or class or so, whatever. तो ये था कि state would have precedent over everything. This was the statement that Plato meant by this. तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं, otherwise we are ending this session. Then tomorrow inshallah we'll cover 2 more. एरिस्टोटल भी करना है, आगे भी करना है। ये वकार भाई मैं कर दूंगा, जो जो चीजें जरूरी होंगी ना। आपको ये नहीं हो सकता कि सब चीज मैं ही करूं, आप ना करें। पॉलिटिकल साइंस के लिए 8 बुक्स पढ़े थे मैंने, इस वजह से ही मैंने 2 बार टॉप किया पूरे पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट को। तो मैं मतलब कोई भी आप में से जितना जीनियस हो ना, मैं पूरा दिन उसको पढ़ाता रहूं, अगर वो खुद नहीं करेगा एक अपना अपनी तरफ से मेहनत, तो वो नहीं हो सकता अच्छी तरीके से। मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा, बाकी ये 30 20 30 लेक्चर्स में ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट हर चीज ही मैं करवा दूं। मैं जो भी होगा मैं करवा दूंगा सर। रेफरेंसेस बिल्कुल जो हरमन में होते हैं वहां से निकालने पड़ते हैं ना, हर बुक में होते हैं रेफरेंसेस, वो आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं।
तो मैंने जिस तरह लेंथ बताई ना कि एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस होनी चाहिए, इस तरह हर आंसर में एटलीस्ट 2 to 3 होने चाहिए रेफरेंसेस। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह टुमारो वील हैव क्लास एट 8 PM शार्प। ये जो टेक्निकल मसला था, वी होप दैट कुछ हमारे साथ और कर देंगे हम इंशाल्लाह। ग्रुप में बाकी जो भी चीजें आई विल कीप शेयरिंग विद यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।